लाइव है तस्वीरें। और ये किसान इतनी तपती दोपहर में बैठे हैं, या तो ये किसान बिल्कुल पागल हैं, किसी प्रकार का कोई इनको कुछ नहीं पता, या फिर इनके साथ ये एजेंसी है जो प्राइवेट ये जाती करती है। कई बार इस प्रकार की वारदात बनती है, इन किसानों को हर बार लाचार होना पड़ता है और इनके द्वारे बैठना पड़ता है। कभी टेंट लगा करके आके भी हमने पूछा था भाई सरदार जी टेंट तो लगा लेंगे, लेकिन ट्रॉली के नीचे बुजुर्ग बैठे हैं। बड़े शर्म की बात है इस कंपनी के लिए, कंपनी के नुमाइंदों के लिए, कि किस प्रकार से लोगों का पैसा हड़पने का ये काम करते हैं। किसानों का पैसा पहले भी बकाया था, बड़ी मशक्कत करने के बाद इन्होंने दिया था। जगदीश जिंडा हमारे साथ है, जोगिंदर जिंडा हमारे साथ है, पूरी बात करेंगे भी आज क्या हुआ है। सुबह से बैठे हैं और ये लोग किसानों के साथ एक खास बात है, इस 152D पर ना तो मोटरसाइकिल चलेगी, ना किसानों का ट्रैक्टर चलेगा। किसान का ट्रैक्टर किस प्रकार से देखिए, कंबाइन भी जो बताई हुई है भी कंबाइन भी नहीं चलेगी। भाई हद है। किसान के नाम पर विकास किया जाता है, वोट मांगा जाता है, लेकिन बावजूद उसके सिर्फ किसान को हरासमेंट, जिल्लत की जो है एक वोट के नाम पर जिंदगी जीने को मजबूर है। जोगिंदर जिंडा क्या कहेंगे, क्या हुआ है दोबारा फिर? सारे भाइयों को राम राम, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान ते मजदूर भराओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਲ ਖੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਬਣਿਆ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ, 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,92,000 ਰੁਪਈਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 7-8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਦਮੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੰਬੋਧ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਸੀ, ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ 15-20 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਦੂਜੇ 8 ਲੱਖ ਪੌਣੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2-3 ਵਾਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਝੂਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਾਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 9ਵੇਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸੰਵਾਰਨਾ ਸੀ। ਖੇਤ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ, 10-12 ਫੁੱਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਖੇਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੰਬੋਧ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਟੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ मिलने नहीं, कंपनी अपना सामान ले जाती है। ये बेईमान लोग ने। कंपनी यहाँ से धीरे धीरे अपना सामान लेकर के जाती है, क्योंकि लगभग काम पूरा हो चुका है। लेकिन ये लोग किसानों के साथ जाती करते हैं, उनका पैसा रखते हैं, उनके चक्कर कटवाते हैं। धरना देने के बाद जो है पैसा मिलता है, ऐसा क्यों? और किसान की ज़मीन, किसान का ट्रैक्टर नहीं चलेगा, किसान की कमाई नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, तो भाई इन सड़कों का फ़ायदा क्या? सिर्फ पूंजीपतियों के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं और हालात जर्जर हैं। और हाँ जी, एक यहाँ के पोपड़े के राजेंद्र मास्टर जी थे, उनका 7 लाख रुपया था, तो वो भी किसान यूनियन के पास गया। एक पीटी मास्टर जी हैं, दोनों गए हमारे, हाँ जी, गए वहाँ सारे किसानों के पास गए जो यूनियन के वर्कर हैं। यहाँ एक दिन धरना दिया तो दूसरे दिन उसके रुपये खाते में आ गए। इनकी थ्योरी यही बन चुकी है, जब धरना देंगे तब रुपये देंगे, नहीं तो वे पैसा दे नहीं रही कंपनी। इतनी बेईमान कंपनी है ये। और पीछे भी एक किसान ने जब इनका सामान अपने कब्जे में लिया था, उसके बाद उसका पैसा दिया था 20 लाख रुपए के करीब था उसका, थड़ वाले का। तो ये हालात ऐसे इन लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। पैसा रो रो कर देते हैं। किसान की जब हक की कमाई है, मिट्टी आपने उठा ली, उसका पैसा देना है। भाई कब से क्या समस्या है? मार्च महीने से वो है जी समस्या। हम बैठे थे यहाँ धरने पे, तो मार्च महीने में इनके साथ हमारी बात हुई थी, समझौता हुआ था। बड़े जो यूनियन के प्रधान हैं 8 मेंबर, वो गए थे। इनके 10.25 लाख रुपए बैठे थे जी, जिसमें से 2 लाख रुपए नए माइनिंग के काट लिए थे अपने, और ये बोल रहा था भाई चाहे माइनिंग में कितने पैसे लगो, हम आपके 3 किस्तों में पैसे दे देंगे। जो आखिरी किस्त थी जी अप्रैल महीने की थी इनकी, अप्रैल के लास्ट की। तो इन्होंने करते करते ऐसे 2 किस्त दे दी। उसके बाद इन्होंने बोले माइनिंग का करके देंगे, माइनिंग करके। उसके बाद हमने दोबारा फिर जैन साहब से मिले। उन्होंने पिछले महीने की 10 तारीख तक पेमेंट बोली थी, भाई हम क्लियर कर देंगे। लेकिन इन्होंने उस जैन साहब के पास मैंने फ़ोन किया, बातचीत हुई, दोबारा उन्होंने फ़ोन नहीं उठा। सुबोध है, सुबोध के पास करता हूँ, वो भी फ़ोन नहीं उठाता। हमने मजबूरी में यहाँ धरना पड़ा जी। यूनियन से मैंने बात की, मगर जी ऐसे पैसे रुक रहे हैं, तो अभी अब हमने मजबूरी में फिर धरना देना पड़ रहा है मार्च महीने। ये वो कंपनी जो यहाँ गंगा टेढ़ी पोपड़ा टोल के नज़दीक है, और किसानों को हर बार यहाँ धरना रखना पड़ता है, उसके बाद मिलता है किसानों का पैसा। ना किसान का ट्रैक्टर चलेगा, ना किसान की कंबाइन चलेगी, ज़मीन किसानों की। और ये कंपनी जो है लगातार देखिए आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान यहाँ से ले जाती हुई। यदि भाई किसी और भाई का भी पैसा यदि रुकता है तो किसान अब तो लगातार बैठे हैं, और किसी ने जरूरत है कल को टेंट लग जाएगा। पूरी तैयारी होगी जोगिंदर जी? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तैयारी है। ये कंपनी वाले जैन साहब सियाने हो तो इसका पैसा दे दे, नहीं तो बड़ा टंट लगेगा। जो भी किसी किसान का 1 लाख 2 लाख 5 लाख, आज एक पीलो खेड़े से किसान आया हुआ था, उन्होंने कुछ इनको सामान दे रखा है। एक यहाँ आया था, पेंटर था, पेंटर ने जो ये बीच में लगा हुआ है लोहे का सामान, इसके ऊपर पेंट किया। 25,000 रुपया पेंटर का गरीब का, वो पीलू खेड़े से है। ये सारे किसानों का पैसा दिलवा के उठेंगे, नहीं तो आज शाम तक इसका पैसा दे दे, नहीं तो बड़ा टेंट लग जाएगा। जितना सामान है हम एक भी यहाँ से गाड़ी निकलनी नहीं देंगे। तपती दोपहर में किसान ट्रॉली के नीचे बैठा है, तपती दोपहर है, और अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन बावजूद उसके ये लोग किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करते। इनसे जब बार बार जो है यहाँ धरने रख करके, टेंट लगा करके, तब ये पैसा जो है देते हैं। किसानों के चक्कर बार बार लगवाते हैं, और किसानों की ज़मीन, किसानों का धन, किसानों का सब कुछ, और ये हालात सरजर किसानों के, उन्हीं को अपने पैसे के लिए यहाँ लगातार बैठना पड़ता है। बने रहिएगा, जुड़ रहिएगा, और इस किसान भाई के पैसे के लिए, इसके हक की कमाई के लिए इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ ट्रॉली के सामने बैठे हैं, ट्रॉली के पीछे बैठे हैं, और देखिए किसान अपनी मांगों को लेकर के, दिल्ली से लेकर के बात करें, करनाल की बात करें, हर जगह किसानों को इस प्रकार से अपने हक की कमाई को मांगना पड़ता है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।